गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आमे लास्ट क्लास रे क्वांटम नंबर रो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट कर सारी छु और एजीमुथल क्वांटम नंबर कंप्लीट कर सारी छु। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल and azimuthal quantum number gives information about the subcell, and in that we have already discussed that for the K cell that n equal to 1, so the L, that value will be 0 because L value depends upon n, how 0 to n minus 1. This part we have discussed. So what is the subcell present in the first cell or first energy level? The subcell is 1s. How it is 1s? 1 belongs to the first energy level or principal quantum number, and S for the secondary quantum subsidiary quantum number or azimuthal quantum number. H L equal to 0, that's why it is S. So for the L cell, n equal to 2, and what are the value of L here? 0 and 1. So what are the subcells present here? 2s and 2p, because 2 and 0, 2 and 1. 2 0 means 2s, 2 1 means 2p. And what is the for A L M cell? N equal to 3, so L value are 0 1 2. So what are the subcells present here? 3s, 3p and 3d. These are the subcells present in the N cell. In the N cell, n value equal to 4. What are the subcells present here? 0 1 2 3. So what will be the subcells name will be? 4 0 means 4s, 4 1 means 4p, 4 2 means 4d, 4 3 means 4l. एक्सस एंती आकारे आपको कंटिन्यू हे पारबा। ठीक अछि। सो दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द S subcell maximum number of orbital will be 12 plus 1, that is 2 into 0 plus 1 means 1 orbital in the S subcell, and with this formula you can calculate in the P subcell there will be 3 orbital, in the D subcell there will be 5 orbital. And if you go to the maximum number of electron in the S subcell, maximum 2 electron can be present. In the P subcell, maximum 6 electron can be present, 3 into 2, and in the D subcell, maximum 10 electron can be present. This is the maximum number of electron, this is number of orbital in the S subcell. Are you getting my point? So now we will go to the next quantum number. एटा मु लास्ट क्लास में जहाँ पढ़ाई था ताकि ओवरऑल रिवाइज कर देली. देन वी विल गो टू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. नाउ पुट हेडिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेडिंग दियो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये का विषय इंफॉर्मेशन देबो. It will gives information about the orbital. और से orbital को तुम कहि पारबो that orientation of electron cloud, जे को डायरेक्शन रे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओरिएंटेड हेछि स्पेस रे. that you can say magnetic quantum number gives information about the orbital in which electron is present, or you can say orientation of electron cloud. से जो ऑर्बिटल को हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहले भी चलबो, कारण स्पेस रे से जेंती आकार ओरिएंटेशन हबा से ऑर्बिटल से आकार ही रहबा. सो आइदर यू कैन से इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल, और द बेटर लैंग्वेज विल बी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहले भी चलबा. हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं कहि कि हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहले बेटर हबा, बिकॉज़ एटम मान को बहुत गुडा इलेक्ट्रॉन भी रहस. Clear? So we can say it gives magnetic quantum number symbol hela n. आउदरे कहूची magnetic quantum number gives information about the orbital in which electron is present, और ताको तुमे कोन लिखि परिबो it gives information about the distribution or orientation of electron cloud. Distribution or orientation of electron cloud. देखा जाऊ it gives information about the distribution, माने स्पेस रे केनती डिस्ट्रीब्यूट हेच इलेक्ट्रॉन माने डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ध्यान रखो जितकी का तुम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू पाएबो
तार ओरिएंटेशन सेतकीटा हेतिबा बा तार पाखरे सेतकीटा ऑर्बिटल थिबा मु एग्जांपल देबी एंड मन रखो द वैल्यू ऑफ m और वैल्यू ऑफ m माने कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन रूम कार ऊपर डिपेंड करिवो फ्लोर ऊपर डिपेंड करिवो डिपेंड्स ऑन एटी फ्लोर माने कि एटी सबसेल से सबसेल को हमें कौन कहू को थ्रू हमें इंफॉर्मेशन पाऊ सबसेल विषय रे एजीमुथाल क्वांटम नंबर ऊपर रू तो वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एजीमुथाल क्वांटम नंबर एजीमुथाल क्वांटम नंबर रो वैल्यू ऊपर से डिपेंड करिवो हाउ तार फार्मूला गुटे अछि देखो केनती आता है फॉर ए गिवन L वैल्यू जनक L वैल्यू देइछि ताहले m इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L हो m इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L तुम जदि L वैल्यू जानि छ ताहले ई m रो मूल्य तुम पाइबो माइनस L2 प्लस L आ जेतकीटा तुम m वैल्यू पाइबो तुम कहबो तार सेतकीटा ओरिएंटेशन हेबो स्पेस से बा तार पाखरे सेतकीटा ऑर्बिटल अछि बोली हमें कहबा एज फॉर एग्जांपल s सबसेल कथा कहबा s सबसेल रो l वैल्यू केते 0 ताहले तार m वैल्यू केते हेबो माइनस L2 प्लस L कहिछि माइनस 0 टू प्लस 0 रो मीनिंग किछि अछि कि नाही खाली 0 ताले m रो मूल्य केतेटा मिलला गोटे मिलला जार मूल्य होछि 0 केवल तो हम कहबा s सबसेल ले गोटे ही ऑर्बिटल अछि इट हैज ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस और इट हैज ओनली वन ऑर्बिटल तार गोटे ओरिएंटेशन अछि स्पेस रे बा ता पाखरे गोटे ही ऑर्बिटल अछि आ सेही ऑर्बिटल के नाम को तार नाम भी s ऑर्बिटल दिया जाय इट इज गिवन एज ए नेम s ऑर्बिटल ता ना हला s ऑर्बिटल बुझी पालो समझते s सबसेल पाखरे जो ऑर्बिटल रहिला ता ना हला s ऑर्बिटल सिमिलरली p को चलो p सबसेल तो स्मॉल लिखु दिबो p रो l वैल्यू केते हेबो l वैल्यू p रो केते 1 ताले m वैल्यू केते हेबो -1 टू +1 माने कोन होला -1 0 +1 केतेटा m वैल्यू पाइलो तुमे p पाई यू गॉट 3 m वैल्यू -1 गुटे पाइलो गुटे 0 पाइलो आ गुटे +1 पाइलो सो ये जो तीनटा वैल्यू मिलला तुमको m पाई ता p पाई ता माने हला p ऑर्बिटल स्पेस रे तीनटा ओरिएंटेशन रे रहिबो काहे कि जेहेतु तार m वैल्यू तीनटा आसुची गुटे हला -1 गुटे हला 0 आ गुटे होची +1 तो जेहेतु m वैल्यू तीनटा आसिला p पाई तो बा p के लिए 3 m वैल्यू मिल रहा है इससे कंक्लूजन यही आएगा p सबसेल 3 टाइप में ओरिएंटेड हुआ है स्पेस में और 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है p सबसेल का और उनका नाम होता है और तो इसका मतलब कितना ओरिएंटेशन आया स्पेस में 3 ओरिएंटेशन आया इसका मतलब p के अंदर 3 ऑर्बिटल है सो इनसाइड द p देयर आर 3 ऑर्बिटल और उसको नाम दिया जाता है कैसे नाम देते हैं px ऐसा p लिखोगे और इसके नीचे y लिखोगे px py एंड pz ये सभी स्मॉल लेटर में हो रहा है ये भी स्मॉल p है ध्यान रखना सो p सबसेल का 3 ऑर्बिटल होता है और उसका नाम होता है px py pz s सबसेल का एक ही ऑर्बिटल होता है और उसका नाम होता है s ऑर्बिटल समझ में आया लेकिन p का कितना ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल है ठीक उसी तरह से d का वैल्यू कितना है 2 सो इसका कितना ओरिएंटेशन आएगा यानी कि कितना ऑर्बिटल होगा इसका कैसे पता चलेगा -2 2 +2 -2 2 +2 मतलब कौन सा है -2 -1 0 +1 +2 अभी देखो इसका कितना ओरिएंटेशन आ गया 1 2 3 4 5 इसका मतलब d के अंदर कितना ऑर्बिटल है d के अंदर 5 ऑर्बिटल है ये तुम्हें पहले भी पता था और इन 5 ऑर्बिटल का नाम कैसे देते हैं इसका नाम को पहले लिख देते हैं फिर मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें कैसे इसको याद रखना है एक नाम होता है और एक ऑर्बिटल है dxy और एक होता है dyz इसका नाम याद रखना होता है dzx और एक होता है इन सभी का हम से भी बाद में डिस्कशन करेंगे dxy dyz dzx और एक होता है dx² - y² और एक होता है dz²। इन पांचों ऑर्बिटल का नाम याद रखना जरूरी होगा ओके इसको कैसे याद रखेंगे जैसे कि x y और z ये तीनों
एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या होता है, एक्सिस को समझते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस को डिफाइन कर लेंगे, 3 एक्सिस चाहिए, एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स वाई एंड जेड वहां से आया है, इसको साइक्लिक हिसाब से समझो, एक्स वाई साइक्लिक अप्लाई कर देना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, याद आ गया 3, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। फिर और एक है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का माइनस, और सिर्फ और एक बचा है जेड स्क्वायर। आई थिंक इसको इजीली तुम याद कर सकते हो, 5 ऑर्बिटल डी का, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक उसी तरह से एफ का भी क्या आएगा, 7 ऑर्बिटल आएगा, लेकिन उनका नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें एस का ऑर्बिटल का नाम, पी ऑर्बिटल का नाम और डी ऑर्बिटल का नाम याद रखोगे तो सफिशिएंट है। लेकिन एफ का 7 आता है, लेकिन उसके नाम में और उसके नेम में मैं नहीं जाऊंगा अभी। इसको याद कर लिया, एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका नाम क्या है, एस ऑर्बिटल, यानी कि स्पेस में एक ही टाइप का ओरिएंटेशन है और एक ही ओरिएंटेशन है। फिर और पी में क्या होता है, इसका पी में 3 ओरिएंटेशन होता है। कौन कौन सा होता है 3 ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, 3 ऑर्बिटल है और उसका ऑर्बिटल का नाम क्या है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। फिर डी का 5 ऑर्बिटल होता है और उस 5 ऑर्बिटल का नाम क्या है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इस तरह से मैंने अभी तुम्हें एस पी डी सबका मैंने कितना कितना ऑर्बिटल होता है मैंने बता दिया है। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे 2, यहाँ इसका 3 ऑर्बिटल है, मतलब 2 2 4 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पी में रह सकता है। डी में उस तरह से 2 2 4 2 6 2 8 2 10, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि उसके पास 10 ऑर्बिटल है। समझ में आ गया सब लोगों को? सो ये तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। इतना में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम खत्म कर सकते हैं। इसको नोट की तरह से लिख देना, मैंने यहाँ पे सबसेट लिखा है और कौन से सबसेट में कौन सा ऑर्बिटल है मैंने इसके बारे में यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अभी आगे हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो तुम्हारा है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। और मैंने तुम्हें बताया था स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन about its own axis, about its own axis, मतलब अपने एक्सिस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है उसको हम स्पिन बोलते हैं। और वो कहाँ से पता चलता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, उस स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है। जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको राउंड कम कर देता हूँ, इसका एक एक्सिस है। सो ये जो एक्सिस ये खुद का एक एक्सिस है। सो इसका ओरिएंटेशन और इसका स्पिन इस तरह से क्लॉकवाइज हो सकता है, यू कैन से इट इज क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज मतलब जो घंटा होता है उसका जो एक जो नीडल और सुई होता है वो इस तरह से जाता है, और इस तरह के रोटेशन को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। और अगर उल्टा आ गया तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इट कैन रोटेट क्लॉकवाइज और इट कैन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर का सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और 2 टाइप का स्पिन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए, इससे और कोई और स्पिन नहीं हो सकता। आइदर क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है, क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है। तो इसीलिए स्पिन क्वांटम नंबर का 2 ही वैल्यू दिया गया है। S इज इक्वल टू आइदर प्लस हाफ लोगे उसका क्वांटम नंबर का वैल्यू, और माइनस हाफ लोगे, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। कुछ बच्चों के दिमाग में घुस जाता है कि सर प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज है और माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसा नहीं है। अगर प्लस हाफ क्लॉकवाइज है
तो माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर हम माइनस हाफ क्लॉकवाइज को ले रहे हैं तो प्लस हाफ हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वैल्यू के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं हाफ के थ्रू कि अगर एक प्लस हाफ हो रहा है तो दूसरा माइनस हाफ हो रहा है। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हाफ ही क्यों लिया गया, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा जैसे कि टिपिकल होता है, मैं तुम्हें स्कोप दूंगा कि तुम अपने हिसाब से पहले नेट में सर्च करो, अगर नहीं तुम्हें मिलेगा आंसर, मैं 2-3 क्लास के बाद इसका आंसर भी मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर अभी के लिए बस एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं अपने से, कि अगर टीचर सब कुछ अगर बताएगा और टीचर इफ टीचिंग एवरीथिंग, then I don't think that will be the proper way of learning. Let the student to search few things that so that they can culture about the topic. Okay, so यहाँ पर मैंने क्या बताया, लेकिन एग्जाम के लिए इतना बस सफिशिएंट है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है उसका सिंबल एस है और उसका वैल्यू अगर प्लस हाफ है तो और प्लस हाफ हो सकता है या फिर माइनस हाफ हो सकता है। और ध्यान रखना इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, अगर क्लॉकवाइज को हम माइनस हाफ लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्लियर? और ऑर्बिटल, और ये तो हो गया तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। क्लियर? और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिस्ट्री में ऑर्बिटल को एक बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक ऑर्बिटल है, सो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल, मान लो 1s का एक ऑर्बिटल है, तो इस बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ में आया? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ध्यान रखना उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा ऑपोजिट होता है। मान लो कि एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, मतलब एक को अगर वो अप लोगे तो दूसरे को तुम डाउन लोगे। एक बच्चा पूछेगा सर इन दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इसको मैंने प्लस हाफ बताया तो ये डेफिनेटली माइनस हाफ होगा, और अगर इसको मैंने माइनस हाफ बताया तो ये डेफिनेटली प्लस हाफ होगा, और या फिर मैं अगर इसको प्लस हाफ बताऊंगा तो इसका वैल्यू माइनस हाफ जरूर होगा, और अगर मैं इसको माइनस हाफ बताऊंगा तो इसका वैल्यू प्लस हाफ जरूर होगा। सो इसमें कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन का 2 ही स्पिन पॉसिबल है, आइदर प्लस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू के हिसाब से आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। और हमेशा याद रखना एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन हमेशा ऑपोजिट होता है, दोनों सेम स्पिन में नहीं चलते। क्यों नहीं चलते सेम स्पिन में? इसका रीजन है, मान लो ए इलेक्ट्रॉन है और इसका स्पिन इस तरह से हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन है इसका भी स्पिन इस तरह से आ रहा है। अगर एक ऑर्बिटल के अंदर है तो ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक ही तरह से अगर स्पिन करेंगे तो इन दोनों में रिपल्सन आ जाएगा। सो रिपल्सन आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, इसीलिए दोनों का स्पिन ऑपोजिट हो जाएगा। अगर दोनों का स्पिन ऑपोजिट हो जाएगा तो दोनों के बीच में दूरियां आ जाएगा और रिपल्सन कम हो जाएगा, और जहां पर भी रिपल्सन कम होता है उसको ज्यादा स्टेबल बोला जाता है, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा ऑपोजिट ही होता है। समझ में आ गया? और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, कोई इसको इस तरह से ऊपर भी लिख सकता है और कोई इसको इस तरह से नीचे भी लिख सकता है, इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कुछ भी लिखो वो सही रहेगा। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन तुम लिख रहे हो तो दोनों का स्पिन डेफिनेटली तुम्हें ऑपोजिट करना ही होगा। इसके बारे में हम अभी आगे और डिस्कशन करेंगे। मेरे ख्याल से चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया। क्या क्या चारों क्वांटम नंबर आ गया? एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर आ गया, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया, और एक स्पिन क्वांटम नंबर आ गया। अभी तुम मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर आपने सारे क्वांटम नंबर पढ़ा दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एड्रेस के बारे में आपने अभी तक कुछ नहीं बताया है, और इलेक्ट्रॉन को एड्रेस यहाँ पे कैसे हम कोरिलेट करेंगे आपने उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मैं उसके बारे में अभी बताऊंगा, और उस टॉपिक को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अभी हम पढ़ेंगे वो इस चारों क्वांटम नंबर का यूज, इन चारों को यूज कैसे किया जाता है अभी हम उसका डिस्कशन करेंगे। और इन चारों को यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जो भी तुम्हारा एलिमेंट है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हें एटॉमिक नंबर से पता चल जाता है, और इलेक्ट्रॉन पता चलने के बाद अभी हम बताएंगे कि वो जो सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम क्या बताएंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, कौन से और सबसेल में है, और कौन से ऑर्बिटल में है।
और उनका स्पिन क्या क्या होता है, हम इन सभी के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। और ये सभी कौन से टॉपिक में डिस्कशन होता है, ये सारे चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कशन होता है। पता चला? सेल मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल मिलेगा। सबसे कौन सा से मिलेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ऑर्बिटल कहाँ से मिलेगा, मैग्नेटिक से। स्पिन कहाँ से मिलेगा, स्पिन क्वांटम नंबर से मिलेगा। सो अभी हमारा जो टॉपिक आ गया, दैट इज द यूज ऑफ ऑल दिस 4 क्वांटम नंबर। सो नाउ पुट हेडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। इसके अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर। और ध्यान रखना हमेशा एप्लीकेशन पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, वी डिस्कस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आया? क्लियर? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए और पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3 रूल के ऊपर बेस्ड होता है। एक होता है ऑफ बोह प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पर्टिकुलरली 3 रूल के ऊपर बेस्ड होता है। एक होता है तुम्हारा ऑफ बोह प्रिंसिपल, AUF, एक ही वर्ड होगा तो चलेगा, इसको ऑफ बोह प्रिंसिपल पढ़ते हैं। F साइलेंट हो जाता है, जब F साइलेंट हो जाएगा AUF BAU, एक ही वर्ड है, AUF BAU, AUF BAU, इसको F साइलेंट करके ऑफ बोह प्रिंसिपल पढ़ते हैं। जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज बेस्ड ऑन 3 रूल, इट इज बेस्ड ऑन 3 रूल के ऊपर बेस्ड है। एक है ऑफ बोह प्रिंसिपल, दूसरा है Ohm's rule of maximum multiplicity, और तीसरा है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्चुअली इस पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कंक्लूजन तुम्हें ऑलरेडी पता है। क्या इस प्रिंसिपल का कंक्लूजन होता है, one orbital can have maximum 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस प्रिंसिपल से पता चलता है, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले इस वीडियो में हम ऑफ बोह प्रिंसिपल एंड Ohm's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। एक होगा ऑफ बोह प्रिंसिपल, इसको F साइलेंट करके पढ़ते हैं, F इज साइलेंट हियर, ऑफ बोह मत बोल देना, इसको क्या बोलेंगे, ऑफ बोह प्रिंसिपल। और एक है Ohm's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और एक है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन आज की क्लास में हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सो चलो डिस्कस करते हैं ऑफ बोह प्रिंसिपल के बारे में। बहुत इजी है और बहुत मजा आएगा अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो। इसमें एक कंडीशन होता है, अगर समझ में आ रहा है तो मजा आएगा, नहीं तो सजा हो जाएगा। ओके, मजा नहीं आ रहा है तो सजा हो जाएगा, ध्यान रखना। सो चलो हम अभी डिस्कस करते हैं और ऑफ बोह प्रिंसिपल के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। ये ऑफ बोह प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ बोह प्रिंसिपल कहता है electrons are filled in various subcell, according to, मैं पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, according to increasing order of their energy,
increasing order of their energy, according to increasing order of their energy. Electrons are filled in various subcells according to increasing order of their energy. इसका मतलब क्या है, जो भी सबसेल है, कौन कौन सा सबसेल है, सबसेल पहले कौन कौन सा है बता दो। फर्स्ट सेल में कौन सा सबसेल था, 1s था फर्स्ट सबसेल में, फर्स्ट सेल में। दूसरे सेल में कौन सा सबसेल था, दूसरे सेल में तुम्हारा सबसेल था 2s 2p था। तीसरे सेल में कौन सा सबसेल था, 3s 3p एंड 3d था, याद है ना। फिर चौथे में इसको इस तरह से कर लेता हूं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। फिर कौन सा सबसेल था, 4s 4p 4d 4d 4s। फिर क्या हो सकता है, 5s 5p 5d, ये आगे बढ़ता जाएगा, 5g खुद कर, 5f एंड 5g ये खुद कर लेंगे। फिर इस तरह से कैसे हुआ होगा, 6s 6p 6d 6f 6g 6h, इस तरह से और आगे भी चल सकता है। ये तो बहुत सारे सबसेल थे। सो इन सभी सबसेल का अभी हम क्या निकालेंगे, और इन जो सभी जो सबसेल है, अगर इनमें हम इलेक्ट्रॉन अगर फिल करेंगे तो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या होता है, जिस सबसेल का एनर्जी सबसे कम होगा वो पहले फिलअप होगा, जिस सबसेल का एनर्जी सबसे कम होगा वो पहले फिलअप होगा। कॉन्सेप्ट को समझो, जिस सबसेल का एनर्जी सबसे कम होगा वो पहले फिलअप होगा। तो हमें पता करना है अभी इन सभी सबसेल में से किसका एनर्जी सबसे कम है, और इसको पता करने के लिए एक रूल होता है n+l रूल। n+l रूल को यूज करके हम पता कर सकते हैं इन सबका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। क्योंकि अगर हमें एनर्जी ऑर्डर नहीं पता है तो पहले कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा ये हम नहीं बता सकते। तो पहले हमें एनर्जी ऑर्डर निकालना होगा, फिर हम इस रूल को अप्लाई करेंगे कि हम बोलेंगे जिसका एनर्जी सबसे कम है वो पहले फिलअप होगा, वो फिलअप होने के बाद दूसरे सबसेल पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ में आ रहा है। सो अभी हम इन सबका n+l वैल्यू निकालेंगे, जिसको n+l रूल कहते हैं। एक होता है n+l रूल, और ये n+ रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल मिनिमम n+l वैल्यू, मिनिमम n+l वैल्यू, मिनिमम इज इट्स एनर्जी, मिनिमम इज इट्स एनर्जी, इज इट्स एनर्जी। मतलब किसी भी ऑर्बिटल का n+l वैल्यू अगर कम है मतलब उसका एनर्जी भी कम है, मिनिमम इज इट्स एनर्जी। और मिनिमम n+ वैल्यू फॉर एन ऑर्बिटल और फॉर ए सबसेल, किसी भी सबसेल का n+l वैल्यू अगर कम है मतलब उसका एनर्जी भी कम है। कैसे करेंगे, मान लो 1s 2s में हम कंपेयर करने के लिए बोला गया, 1s का n+l वैल्यू क्या है बताओ, 1s का n वैल्यू, 1s का हम n+n वैल्यू निकालते हैं, n क्या है इसका 1, l क्या है इसका 0। सो n+l तुम्हें क्या मिला इसका 1 + 0 मतलब 1। 2s का n+l वैल्यू क्या होगा बताओ, 2s का n वैल्यू 2 है, l वैल्यू क्या है 0 है, n+l वैल्यू 2 है। सो 1s और 2s में से किसका n+l वैल्यू कम है, 1s का कम है। तो 1s और 2s में से किसका एनर्जी कम होगा, 1s का एनर्जी कम होगा। मिनिमम n+n वैल्यू फॉर ए सबसेल, मिनिमम इज इट्स एनर्जी। तो 1s और 2s में से किसका एनर्जी कम है, 1s का एनर्जी कम है। तो 1s का जो एनर्जी है दैट इज लेस देन 2s। पता चल गया है 1s का एनर्जी 2s से कम है। फिर कौन सा है आ रहा है, 2p आ रहा है, तो 2p को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2p का n+l वैल्यू क्या होगा, 2 and 1, मतलब p का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। सो 2 + 1 कितना आएगा 3। सो 2s और 2p में से किसका एनर्जी ज्यादा है, 2p का एनर्जी ज्यादा है। सो 2p का एनर्जी ज्यादा हो गया। फिर चलते हैं 3s के पास, 3s का n+l वैल्यू निकालो, 3s का n+l वैल्यू क्या होगा 3 and 0। अभी यहाँ पर 3 and 0 सम कर दोगे तो क्या होगा 3। अभी यहाँ पे डाउट हो सकता है 2p का भी n+l वैल्यू 3 है और 3s का भी n+l वैल्यू 3 है।
तो मतलब दोनों का एनर्जी सेम होगा? नहीं। जब n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाता है, अभी हम देखेंगे n को, जिसका n कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। मतलब n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम कंपेयर करेंगे। अगर तुम n प्लस एल वैल्यू तुम्हें सेम मिल गया तो तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चले आना। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। यानी कि 2p और 3s में से किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है? 2p का, तो इसीलिए 2p का एनर्जी कम होगा, 3s का एनर्जी ज्यादा होगा। समझ में आ गया? सो अगर n प्लस एल वैल्यू सेम है, फॉर, मैं लिख देता हूं इसको, फॉर सेम n प्लस एल वैल्यू, फॉर सेम n प्लस एल वैल्यू, मिनिमम n value for an orbital or for a subcell is minimum its energy, is minimum is its energy, उसका एनर्जी भी मिनिमम होगा क्योंकि उसका n प्लस एल वैल्यू कम है। जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होता है उसका एनर्जी भी कम होता है। समझ, ये तो पता है सबको। लेकिन अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो गया तब जिसका n वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। ये पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट में। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम है तो n को कंपेयर कर लो। समझ में आ गया? 2 और 3 में से किसका n कम है? 2p के कम है तो इसलिए आगे आएगा। फिर 3s 3p को कंपेयर कर लेते हैं 3p में। 3p में n प्लस एल वैल्यू क्या है? 3p में n प्लस एल वैल्यू है, 3p में n का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू 1 है, सो वैल्यू आ गया 4। मतलब 3s और 3p में से किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 2p से 3s का एनर्जी ज्यादा आ गया, 3s से 3p का एनर्जी ज्यादा हो गया। समझ में आ गया? चलो कंपेयर करते हैं 3d के बारे में। 3d का n प्लस एल वैल्यू क्या है? 3 2 5। सो 3p और 3d में से किसका एनर्जी ज्यादा है? 3d का एनर्जी ज्यादा है। समझ में आ गया? 3p और 3d में से किसका एनर्जी ज्यादा है? 3d का एनर्जी ज्यादा है। चलो आगे चलते हैं 4s के बारे में। सो 4s को कंपेयर कर लेते हैं। 4s का n प्लस एल वैल्यू क्या है? 4 और 0। अभी देखो 3d और 4s में से किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 3d और 4s में से किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 3d का, क्योंकि 3d का n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है और 4s का n प्लस एल वैल्यू कम है। समझ में आ गया? लेकिन 4s और 3p में से किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 4s का, क्योंकि दोनों का वैल्यू 4 है लेकिन इसका n वैल्यू 3 है। समझ में आ गया? सो 3p के बाद 3d नहीं आकर कौन आएगा? 3p के बाद 4s आएगा, फिर उसके बाद 3d आएगा, क्योंकि 3d का n प्लस एल वैल्यू 5 है और 4s का n प्लस एल वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये एनर्जी ऑर्डर है। ये 4s आएगा, 3p के बाद 4s आएगा, फिर आगे 3d आएगा। समझ में आ गया? फिर आगे अगर जाओगे 4p आएगा। 4p का क्या होता है? 4p का 4 + 1 5 होता है, तो 3d के बाद 4p आएगा। ये तुम्हारा n प्लस एल वैल्यू के हिसाब से ये एनर्जी ऑर्डर निकाला गया है बहुत और सभी सबसेल का, और इस ऑर्डर के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसका क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन वेरियस सबसेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इसका मतलब ये है जो एनर्जी, तो ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वेरियस सबसेल। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल। ये वेरियस सबसेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो इस ऑर्डर को देख के हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा और कहाँ पहले फिलअप होगा। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर फिलअप होगा? 1s में, उसके बाद कहाँ पर आएगा? 2s में, उसके बाद कहाँ पर आएगा? 2p में, उसके बाद कहाँ पर आएगा? 3s में, उसके बाद कहाँ पर आएगा? 3p में, उसके बाद कहाँ पर आएगा? 4s में, उसके बाद कहाँ पर आएगा? 3d में, उसके बाद कहाँ पर आएगा? 4p में। समझ में आ गया? ये तुम्हारा आउटगो प्रिंसिपल कहता है। पहले 1s फिलअप होगा, फिर 2s फिलअप होगा, फिर 2p फिलअप होगा, फिर 3s फिलअप होगा, फिर 3p फिलअप होगा, फिर 4s फिलअप होगा, फिर 3d फिलअप होगा, फिर 4p फिलअप होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर को ध्यान रखना। क्या है? इतना तक, आगे और ऑर्डर को याद रखने की जरूरत नहीं है, 3d तक भी याद रखोगे तो चल जाएगा। क्या है तुम्हारा ऑर्डर? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3d नहीं आकर कौन आएगा? 4s, उसके बाद 3d आएगा।
और क्या है रीजन मैंने यहाँ पर बता दिया। और कभी किसी बुक में इस टेक्निक से भी दिया होता है, लेकिन ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैसे ये ऑर्डर बना है। लेकिन इसको किसी बुक में तकनीक के तरफ से तकनीक के हिसाब से दिया होता है, जैसे कैसे एरो खींचता देता है 1s 2s, एरो खींचते जाओ 2p 3s, देखो 3p 4s, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, बस ये तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिया हुआ है। समझ में आ गया? फिर इस तरह से भी चलता है, लेकिन इसको इतना इम्पोर्टेंस मत देना, तुम्हें ये रीजन पता होना चाहिए जो मैंने बताया n+l रूल के हिसाब से, तो ताकि तुम कोई भी सबसेल, दोनों सबसेल का एनर्जी कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें दिया 7p एंड 4d, इसमें से किसका एनर्जी ज्यादा होगा कैसे पता चलेगा? 7p एंड 4d में से किसका एनर्जी ज्यादा होगा कैसे पता चलेगा? 7p का n+l वैल्यू क्या है? 7p का n+l वैल्यू 8 है, इसका n+l वैल्यू क्या है? 4 + 2 6 है, क्योंकि d का वैल्यू 2 होता है। इसका n+l वैल्यू कम है और इसका ज्यादा है, तो इसीलिए 4d का एनर्जी 7p से कम होगा। समझ में आया सब लोगों को कैसे करते हैं इसको? तो n+ रूल का एप्लीकेशन जानना, n+l रूल का एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी था। तो इस हिसाब से और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? 1s पे जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s पे आएगा, फिर 2p पे आएगा, फिर 3s पे आएगा, फिर 3p पे आएगा, फिर 4s पे आएगा, फिर 3d पे आएगा, फिर 4p पे आएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? सब लोगों को क्लियर हो गया? ये चीजें सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अभी चलो इसका एप्लीकेशन हम कुछ करते हैं, इस ऑबो प्रिंसिपल के हिसाब का, और इसका हम एप्लीकेशन कुछ करते हैं। मैंने कहाँ से शुरू किया था? इसको इस तरह से लिख देना, n+l रूल को भी कॉपी में लिखना, और ये जो मैंने सॉल्व किया था इन सभी सबसेल का n+l वैल्यू निकाला था, इसको भी कॉपी में लिख देना, ताकि बाद में तुम्हें डाउट नहीं आएगा। ओके, चलो इसका हम अभी एप्लीकेशन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कार्बन का हमने शुरू किया था, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, इसका मतलब है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। हमें इन सभी इलेक्ट्रॉन का बताना है कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितना है। इसके लिए तुम्हें इसको लिखने के लिए तुम्हें इस ऑर्डर का पता होना जरूरी होगा। कौन सा ऑर्डर का? 1s 2s 2p 3s 3p, ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा फिट हो जाना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा, फिर उसके बाद और एक चीज तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, s अगर है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर 1s में अगर 2 है तो 2s में क्या 4 होगा? नहीं, ये 1 2 या फिर 3 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है, ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है। सब ध्यान रखना, 2 × s नहीं है, या फिर ये 1 × s नहीं है। यहाँ पर 1s का मतलब है फर्स्ट सेल का s सबसेल है, और यहाँ पर 2s का मतलब है सेकेंड सेल का s सबसेल, यहाँ पर 3s का मतलब है थर्ड सेल का s सबसेल। तो कोई भी s सबसेल अगर है तो वहां पर सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ये सबको पता है। ठीक उसी तरह से कोई भी p अगर है वहां पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और कोई भी अगर d है तो वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, सब मैक्सिमम, मतलब 8 रह सकता है, 7 रह सकता है, लेकिन 11 यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से 6 रह सकता है, 5 रह सकता है, 4 रह सकता है, खाली भी हो सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ये तुम्हारे दिमाग में अगर है तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे? देखो, पहले कहां पर फिलअप होगा? पहले 1s पे फिलअप होगा। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कहां पर फिलअप होगा? 1s पे। तो 1s लिख देना यहाँ पे, और 1s पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि s में 2 ही रहता है। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 6 में से 2 निकल गया, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? हाथ में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। 1s तो फिलअप हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन कहां पर फिलअप होगा? 2s पे फिलअप होगा। लिख दो यहाँ पे 2s, ये ऊपर ही लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऊपर लिखते हैं, ध्यान रखना। 2s स्मॉल s लिखोगे और s के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखोगे। सो अभी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, फिर अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 4 इलेक्ट्रॉन बचा है। उस 4 में से 2s के पास कितना रहेगा? 4 रहेगा? नहीं, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सो अभी उस 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2s में रह जाएगा। समझ में आया? और कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। कौन से सबसेल पे आओगे? तो 1s फील्ड हो गया, 2s फील्ड हो गया, अभी कौन से सबसेल पे आओगे? 2p पे आओगे। 2p पे मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2p पे मैक्सिमम 6 रह सकता है, यानी कि 2 रहेगा या नहीं? 2 रह पाएगा। क्यों मैं 2 लिख रहा हूँ?
क्योंकि 2 2 4 तो हो चुका है, अभी और दो ही इलेक्ट्रॉन बचा है, सभी इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखेंगे। समझ में आ गया क्या क्या इलेक्ट्रॉन हो गया? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो क्या हो गया? 1s2 2s2 एंड 2p2। समझ में आ गया सबको? इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कौन सा सबसेल इनकम्प्लीट है, कौन सा सबसेल इनकम्प्लीट है। यहाँ पे 1s कंप्लीट, 2s कंप्लीट, 2p इनकम्प्लीट है, क्योंकि 2p के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? चलो और एक दो कर लेते हैं इसके हिसाब से, बस इतना अगर याद है तो तुम ये लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो। चलो हम मैग्नीशियम का कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तुम्हें एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो इसका मतलब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है ये भी तुम्हें नहीं पता है। तो मैग्नीशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। इसका मतलब है इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो अभी हम 12 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? सबसे पहले ये ऑर्डर हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? पहला वाला इलेक्ट्रॉन 1s पे आएगा। सो पहला वाला इलेक्ट्रॉन 1s पे आएगा, और कितना इलेक्ट्रॉन 1s पे मैक्सिमम रह सकता है? 2। समझ में आ गया? 12 में से 2 निकल गया और कितना बचा है? 10 बचा है। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? 2s पे। 2s s पे मैक्सिमम कितना रहेगा? 2 2 2 4 निकल गया, अभी और कितना बचा है? 8 बचा है। 2p पे कितना आएगा? वो 8 लिख दिया। ये सही है या गलत है? कौन कौन बताएगा सही है या गलत है? गलत। इसमें क्या गलत मैंने लिखा है? p में मैक्सिमम कितना रहता है? p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। p में अगर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2p पे मैंने 8 कैसे लिख दिया? तो इसलिए यहाँ गलत हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 में से 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? अगर 2p फिलअप हो गया है फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? 3s पे आएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? 3s कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 2। तो आंसर हो गया 3s2। समझ में आ गया सब लोगों को? आंसर हो गया 3s2। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया सब लोगों को? कार्बन निकल गया, मैग्नीशियम निकल गया, मैग्नीशियम क्या हो गया? फिर आगे हम जाएंगे, चलो एक बड़ा वाला करते हैं, आयरन का करते हैं। 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर सबको याद होना चाहिए, क्वेश्चन 1 से 30 तक ही आएगा। सो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, यानी कि आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन है। तो फिलअप करना शुरू करते हैं। इसके पास पहले कितना जाएगा? 1s के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा। अभी और कितना बचा है? 24 बचा है। फिर कहाँ पर आएगा? 20s 2s पे आएगा। अभी 4 निकल गया तो 22 बचा है। फिर कहाँ पर आएगा? 2p पे आएगा। उसके पास 6 रहता है। 6 4 10 निकल गया। अभी और कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 16 इलेक्ट्रॉन बचा है। 2p लेकिन कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? 3s पे आएगा। 3s का इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? देखो 2 2 4 6 10 10 2 12 निकल गया है, और कितना बचा? 14 बचा है। फिर 3s अगर कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? 3p पे आएगा। 3p पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि 14 बचा था। जैसे कि 4 4 10 12 12 से 18 हो गया। अब कितना बचा है? 18 हो गया है। अब बचा है 6 इलेक्ट्रॉन। सॉरी 18 से कितना जोड़ दो? 8 जोड़ दो तो 26 हो जाएगा। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बचा है और 3p कंप्लीट हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? 3d पे जाएगा या फिर 4s पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन 4s पे ही जाएगा। क्यों 4s पे आएगा? क्योंकि 4s का एनर्जी 3d से ज्यादा है। 4s का एनर्जी 3d से ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन 4s पे जाएगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? 4s पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन 4s पे आ गया तो 4s पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी अगर s देगा तुम्हें तो वहां पर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। 4s2 लिख दिया तुमने यहाँ पर। और कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा? कितना इलेक्ट्रॉन बचा है देख लो। 4 6 10 12 से 18 20 हो गया। 18 प्लस 2 20 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। और d में मैक्सिमम कितना रहता है? मैक्सिमम 10, मतलब 6 रह सकता है। तो इसीलिए 3d में कौन सा आएगा? 3d में कितना आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखना? सही हो गया? सही हो गया। लेकिन अगर तुम इसको मोर एक्यूरेटली अगर लिखना चाहोगे, अगर इसका मोर एक्यूरेट आंसर लिखो, और क्यों ये गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई तुम्हारा मार्क यहाँ पे नहीं काट सकता। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 इलेक्ट्रॉन 3d और 4s रहता है। मैंने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि जो 4 नंबर सेल है वो 3 से बाहर है, मतलब 3 के बाद ही 4 आता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s पे फिलअप हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको सर्कल बनाएंगे तो पहले कौन सा एनर्जी लेवल आता है, पहले थर्ड एनर्जी लेवल आएगा, फिर उसके बाद ही 4 आता है। तो इसीलिए ये इसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर फिलअप होगा, 4s पे फिलअप होगा। इलेक्ट्रॉन तो 4s में ही फिलअप होगा पहले, लेकिन अगर हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर 20 हो गया, मतलब कितना हो गया, 18 हो गया, शायद 18 हो गया 3p6 के बाद। 3p6 कंप्लीट होने के बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन बचा है उसमें से 2 4s पे जाएगा, 18 2 20 हो गया, फिर और जो 6 इलेक्ट्रॉन बचा है वो 3d पे आएगा। एक्चुअली ये दोनों सही है, लेकिन अगर कोई पूछेगा इसमें से ज्यादा सही कौन सा है तो ये वाला ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4th सेल, जो 4 नंबर सेल है वो बाहर है, जो कि वाकई ही बाहर ही रहता है। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में 4 नंबर सेल को मैंने अंदर रख दिया है। इसका भी हम आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। ये बहुत माइन्यूट, बहुत ही कम बुक में ऐसा लिखा गया है, लेकिन ज्यादातर बुक में ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कौन सा ज्यादा सही रहेगा, ये वाला ज्यादा सही रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं तुमको पहले ही बता दिया, मेरे ख्याल से तुम अगर इस तरह से लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा सही है, इससे ये ज्यादा सही है। क्यों सही है मैंने बता दिया है यहाँ पे, क्योंकि 4 नंबर सेल जो बाहर का सेल है, मतलब 3 के बाद 4 आता है, इसलिए मैंने 3 के बाद 4 को 3 के बाद ही 4 को लिखा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फील्ड कहाँ पर पहले होगा, 4s पे होगा, फिर 3d पे होगा। लेकिन अगर तुम्हें अगर इजी नहीं लग रहा है इस ऑर्डर के हिसाब से, तो इस हिसाब से भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई गलती नहीं है। तुम अगर ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आ गया मैंने इन दोनों के डिफरेंस मैंने क्या बताया, समझ में आया। लेकिन तुम्हें जो वाला इजी लगे वो तुम लिख सकते हो। ये वाला लिखोगे तो भी चलेगा, ये वाला लिखोगे तो भी चलेगा। अभी तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, तुम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक कंप्लीट करना, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक कंप्लीट करना। सब लोग, कोई बुक नहीं देखेगा, जो भी तुम्हें समझ में आया है तुम इस तरह से करते जाना। जो भी दिक्कत आएगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक तुम सब लोग लिख कर रखना। जो मेरा आगे वाला जो वीडियो आएगा वहाँ पे मैं उस सब आंसर के बारे में डिस्कशन करूँगा। समझ में आया। जब तक मैं ना डिस्कशन कर लेता हूँ तुम बुक में नहीं जाओगे। जब मैं डिस्कशन करना खत्म कर दूंगा तभी जाकर तुम बुक में जाओगे। अभी तुम कोई बुक नहीं देखोगे, तुम डायरेक्टली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओगे। कहाँ से कहाँ तक, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक। समझ में आ गया सब लोगों को मैंने क्या बताया, क्लियर, सब लोग समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरे वीडियो को ठीक तरह से देखना। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार 3 बार 4 बार ही देखना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हमने क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन किया है। ध्यान रखना, इसको जो जितना जल्दी प्रैक्टिस करेगा, जो जितना बार बार प्रैक्टिस करेगा, उसका आंसर उतना परफेक्शन होता जाएगा। और एक बार वीडियो देखने से ये नहीं आएगा। 2-3 बार अगर वीडियो देखोगे, गेम खेलने के वजह से अगर गेम नहीं खेल कर अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीटली बिल्ड होता जाएगा। ध्यान रखना, एक बार देखने से ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब हम कॉलेज में जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या कोई भी टीचर जब कॉलेज में पढ़ाते हैं तो एक चीज़ को हम बार बार 2 बार 3 बार 4 बार बोलते हैं। क्यों? हमें बच्चों को चेहरा को देखकर पता चल जाता है कि बच्चों में अभी भी डाउट है। कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा देखता रहता है। तो बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि कुछ बच्चों को अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम उसको दोबारा बोलते हैं, कोई एक अलग तरीके से भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तुम किसी को देख नहीं सकता, तो इसीलिए मुझे जहाँ पर खुद से कुछ डाउट लगा तो मैं उसको दोबारा बोल दिया। लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से पढ़ाते चला ना। तो इसीलिए तुम लोग इस वीडियो को बार बार देखना। फिर अगर कोई डाउट होगा तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, तुम मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। जो तो टीचर व्हाट्सएप ग्रुप में अभिषेक से डाउट क्लियर कर रहे हैं, अगर उसके अलावा भी अगर तुम्हें मेरा हेल्प चाहिए तो तुम मुझे किसी भी वक्त इसके बारे में तुम मुझे पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट होगा। मेरे ख्याल से मैंने अपना बेस्ट दिया है यहाँ पे, और तुम इसको अभी खुद से सॉल्व करना सीखो। नहीं कोई दिक्कत आएगा तो तुम मुझे बताना। ओके, थैंक यू।